A very good morning to all of you. Missing a lot, all of you, and I hope that you would be well at your home. And a piece of advice for you to please use the hot water at least twice a day. It works. Really, it helps. So follow this advice of me. Now we will discuss the assignment today, which was given to you yesterday. A lot of students have sent the assignment after the solution, and when I check the assignment or their answers, if there is any answer is wrong, then they want to give the explanation or they seek the explanation. So I have given, but I observed that it takes a lot of time. So today I will try to clarify the doubts, and I will give the full length discussion on the assignment given to you earlier. It would also help to those students who didn't try to attempt the questions. Number 2, it will also be a kind of revision of the concepts which we have studied in our classroom. So उससे भी थोड़ा सा कुछ यादें भी हमें याद आ जाएगा उनसे भी. So let us start. The first question: communication may be defined as a process of. Communication is defined as a process of. I know very well that you all know the process of the communication, but I would remind the process very quickly. In communication process, there are two ends, because this is the two-way process. At one end there is a sender, at the other end there is a receiver, and these two persons or these two groups are joined together or linked together with the help of channel and medium. So now, if sender will give, receiver will receive, and after receiving the message, it will give the feedback. So this feedback may be said the exchange. So in the light of this discussion, now we will see the options. Option 1: giving, correct. Receiving, correct. Exchanging means feedback, correct. So giving, receiving, exchanges option is correct. So please don't confuse with the option C. In option C there is giving is correct. Exchanging, this is not correct. Exchange तब होगा जब रिसीवर को मैसेज मिलेगा और वो अपनी फीडबैक देगा, उसको आप एक्सचेंज समझिए. दैट इज द एक्सचेंज. एक्सचेंज का मतलब लेन देन में लेना देना, गिव एंड टेक. आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा. ट्रिकी क्वेश्चन था. सेकंड क्वेश्चन: फिजिकल प्रोसेस ऑफ लिसनिंग इज मोस्टली कंफ्यूज्ड विद. फिजिकल प्रोसेस ऑफ लिसनिंग इज मोस्टली confused with active listening, watching, hearing, both A and C. Listening किससे कंफ्यूज, लिसनिंग का फिनोमिना जो है वो किससे कंफ्यूज करते हैं हम अक्सर? हीयरिंग से, बिकॉज द पर्सन्स थिंक दैट हीयरिंग एंड लिसनिंग आर बोथ सेम थिंग, and in the classroom we have discussed it in length that hearing and listening is totally different phenomena. There are some differences. So the answer is hearing. Hearing को हम listening समझ लेते हैं कई बार, तो answer is hearing. Option C is correct. Question number 3: listening is a way of saying you are important. देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिस्कशन इसमें होना चाहिए कि लिसनिंग इज ए वे ऑफ सेइंग. मैं लेक्चर देता हूँ, आप लेक्चर को सुनते हैं,
इसका मतलब ये हुआ कि आप मुझसे साइलेंटली एक बात कह रहे हैं बिना कहे कि यू आर इम्पोर्टेंट। अगर जो मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूं तो आप सुनते भी नहीं। अगर जो हम किसी की बात को ध्यान से सुनते हैं तो इसका मतलब हम उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और इनडायरेक्टली वी आर सेइंग दैट यू आर इम्पोर्टेंट। यहां तक बात समझ में आई। अब इस इन द लाइट ऑफ दिस एक्सप्लेनेशन अब देखिए ऑप्शंस। लिसनिंग इज ए पावरफुल फॉर्म ऑफ एक्नॉलेजमेंट। यही आंसर, दिस आंसर इज करेक्ट। लिसनिंग इज ए पावरफुल फॉर्म ऑफ एक्नॉलेजमेंट। के लिसनिंग प्रोसेस जो होता है तो उसमें जो लिसनर होता है वो आपको एक्सेप्ट करता है, तब बहुत ध्यान से आपको सुनता है तो इट मीन्स ही और सी इज एक्सेप्टिंग टू यू एंड दिस फिनोमिना ऑफ एक्सेप्टेंस इज नोन एज द एक्नॉलेजमेंट। बाकी के ऑप्शंस आप देखेंगे तो वो करेक्ट नहीं है। उसमें देखिए बी ऑप्शन है जैसे लिसनिंग क्रिएट्स एक्सेप्टेंस, बिल्कुल ठीक है। लिसनिंग क्रिएट्स एक्सेप्टेंस क्रिएट करती है, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन बी आंसर हो सकता है इसका। सी इट इज ए फाउंडेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये भी बिल्कुल ठीक। लिसनिंग इज लर्निंग, लिसनिंग से लर्निंग भी होती है, ये भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसमें लेकिन ये इन ऑप्शन में हमने ऑप्शन ए ही क्यों चुना? क्योंकि ये उसकी तरफ से है। यू आर इम्पोर्टेंट, लिसनिंग इज ए वे ऑफ सेइंग यू आर इम्पोर्टेंट। मतलब एक एसेंस बताई गई है लिसनिंग की कि लिसनिंग में क्या होता है, एक तरह से एक्सेप्टेंस होता है, एक तरह का कोई रिसीव करता है, मतलब एक्नोलेज करता है कोई हमारे को। एक्नोलेज, द करेक्ट वर्ड इज एक्नोलेज। सो द करेक्ट वर्ड इज एक्नोलेज, देन वी कैन से दैट लिसनिंग इज द पावरफुल फॉर्म ऑफ एक्नोलेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 4, कीपिंग एन ओपन माइंड इज, आप बताइए कि तो बहुत आसान है, इजी। स्किल ऑफ एक्टिव लिसनिंग, ऑप्शन फर्स्ट। ऑप्शन सेकेंड लीड्स टू लर्निंग। सी प्लेजरेबल, नन ऑफ द अबव। तो कीपिंग एन ओपन माइंड, ओपन माइंड कब रखना चाहिए हमें ओपन माइंड? लिसनिंग की टेक्निक जब हमने पढ़ी थी तो उसमें क्या था, हेलो इफेक्ट पढ़े थे और स्नैप रिएक्शन, ये सारे बैरियर्स भी पढ़े थे हमने और उसकी टेक्निक भी पढ़ी थी। तो सबसे पहले उसमें क्या था कि अगर जो आपका दिमाग ओपन नहीं है तो यू आर अनेबल टू रिसीव द इंफॉर्मेशन एंड यू कैन नॉट, if you are not in condition of accepting at that time you cannot be benefited by this process. So listening is क्या keeping an open mind, ये condition किसकी है? skill of active listening की। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, which statement is more relevant to the following statement? People are aware of the need to speak well. People are aware of the need to speak well. लोग बाग अवेयर हैं, जागरूक हैं, जानकार हैं, सचेत हैं एक नीड की स्पीक वेल, अच्छी तरह से बोलना है। इस लोग बाग इस चीज के प्रति सचेत हैं, ये है इसका स्टेटमेंट का मतलब। अब इस स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए ऑप्शन देखिए। फर्स्ट ऑप्शन लिसनिंग इज ए स्किल, सब सारी दुनिया को पता है लिसनिंग इज ए स्किल। दूसरा, द एबिलिटी टू लिसन वेल इज जस्ट एज इम्पोर्टेंट। थर्ड, राइटिंग नोट्स हेल्प्स द लिसनिंग प्रोसेस। बोथ ए एंड सी। अब देखिए इस ऑप्शन में ए भी ठीक है, लिसनिंग इज ए स्किल, सी भी ठीक है, राइटिंग नोट्स हेल्प्स द लिसनिंग प्रोसेस। बट क्वेश्चन में स्टेटमेंट क्या है कि विच स्टेटमेंट इज मोर रेलिवेंट कौन सी है? इसमें देखिए पीपल आर अवेयर ऑफ द नीड टू स्पीक वेल, इट मीन्स द एबिलिटी टू लिसन वेल इज जस्ट एज इम्पोर्टेंट। जिस तरह से लोग अवेयर हैं कि स्पीकिंग के अच्छी तरह से बोलना चाहिए, उसी तरह से पीपल की अवेयरनेस ये भी तो है कि लिसनिंग भी अच्छी तरह से होनी चाहिए। तो दैट इज द करेक्ट आंसर। द एबिलिटी टू लिसन वेल इज, मतलब इस स्टेटमेंट के कंट्रास्ट में है ये एक तरह से। उसमें स्पीकिंग के बारे में बोला, स्पीकिंग है तो अपोजिट में लिसनिंग भी तो होगी। अगर जो मैं बोलता हूं, मैं आई एम स्पीकिंग, यू आर लिसनिंग, तो स्पीकिंग वेल है तो लिसनिंग भी वेल होनी चाहिए, अदरवाइज हमारा गोल, हमारा पर्पज फुलफिल नहीं हो सकता। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉब्लम इन लिसनिंग?
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉब्लम इन लिसनिंग। लिसनिंग में कौन सी चीज प्रॉब्लम नहीं है? पहला, मोस्ट पीपल हैव ए प्री ऑक्युपाइड माइंड। ये तो प्रॉब्लम है कि प्री ऑक्युपाइड माइंड होगा तो लिसनिंग हो ही नहीं सकती, ठीक है। दूसरा देखिए, पीपल डू नॉट टेक शॉर्ट नोट्स। ये भी एक प्रॉब्लम है। अगर जो शॉर्ट नोट्स हम साथ साथ नहीं लेते तो एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको हम नोट नहीं करेंगे तो वी विल मिस समथिंग, तो ये भी ठीक है। थर्ड, पीपल डू नॉट टेक प्लेजर। लोग आनंद नहीं लेते। अच्छा, डी ऑप्शन, पीपल डू नॉट टेक फीडबैक। फीडबैक अगर जो वो नहीं लेते हैं या देते हैं तो ये भी एक तरह से बैरियर है लिसनिंग में। बैरियर क्या नहीं है कि पीपल डू नॉट टेक प्लेजर, कि उसमें मज़ा नहीं लेते। अब मज़ा लेना एक अलग चीज़ है, और लिसनिंग प्लेजरेबल हो सकती है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं कि आपका बॉस है, आपको डिक्टेशन दे रहा है, आप उसको नोट भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें फुलफिल कर रहे हैं, लेकिन आपको क्या उसमें आनंद आता है? हमेशा नहीं आता। तो प्लेजर लेना ये कोई इसका क्या नाम है, प्रॉब्लम नहीं है लिसनिंग में। तो क्या होना चाहिए? सी। बाकी सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन सिर्फ एक प्रॉब्लम क्या, पीपल डू नॉट टेक प्लेजर। प्लेजर ले या ना ले तो ये कोई लिसनिंग की प्रॉब्लम नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है ऑप्शन सी। 7, वीक कमांड ऑन लैंग्वेज इज ए टाइप ऑफ। वीक कमांड ऑन लैंग्वेज एकदम से आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। वीक कमांड ऑफ लैंग्वेज कहाँ होती है? सिमेंटिक बैरियर में होती है। और सिमेंटिक बैरियर कैसा होता है? सिमेंटिक बैरियर किससे रिलेटेड है? लैंग्वेज से रिलेटेड है, वर्ड से रिलेटेड है। और लैंग्वेज और वर्ड्स वो किस सेंस ऑर्गन से ऑपरेट करते हैं हम उनको समझने के लिए? माइंड से। और माइंड हमारा अपना इंडिविजुअल और अपना पर्सनल मैटर है। और तो ये इंटरनल है या एक्सटर्नल है? तो ऑप्शन में देखिए, हम ऑप्शन देखते हैं। मेंटल डिस्कम्फर्ट, इंटरनल बैरियर। तो वीक कमांड ऑफ लैंग्वेज एक बैरियर है। अब बैरियर की बात कौन से ऑप्शन में है? पहले ऑप्शन में है, इंटरनल बैरियर। और इंटरनल फिनोमिना भी है ये, तो आंसर ए करेक्ट है। बाकी के ऑप्शन आप करेंगे, सोचिए, है ही नहीं ठीक। जैसे मैं डिस्कस करूं कि बी ऑप्शन है मेंटल डिस्कम्फर्ट। अब मेंटल डिस्कम्फर्ट से वीक लैंग्वेज की कमांड का कोई मतलब कोई रिलेशन ज़्यादा है? कई बार क्या होता है कि हमारे सिर में दर्द है, मान लिया मैं आपकी क्लास लेने के लिए आता हूँ, मेंटली डिस्कम्फर्ट है मेरे अंदर, तो क्या मेरी कमांड जो लैंग्वेज पे है उस पर फर्क पड़ेगा? कोई हो सकता है कि कुछ वर्ड्स मैं ना अच्छी तरह से याद कर पाऊं या प्रयोग कर पाऊं, ये तो हो सकता है, लेकिन मेरी जो कमांड है लैंग्वेज पे वो तो रहेगी, उसको तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। तो इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन पे ये एक सलाह है मेरी कि जब आप आंसर सॉल्व करते हैं तो थोड़ा सा टाइम लेना सोचने के लिए। सोचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑप्शंस इस तरह के होते हैं कि ऐसा लगता है ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, और कन्फ्यूजन होता है। तो इन सच सिनेरियो यू शुड गो थ्रू प्रॉपरली विद द आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 8, इंटोनेशन एंड स्ट्रेस। इंटोनेशन एंड स्ट्रेस। अब देखिए, ये जो स्ट्रेस है, इस स्ट्रेस का मीनिंग यहाँ पर वो नहीं है कि मेंटल स्ट्रेस, नहीं। स्ट्रेस किस में होती है? स्ट्रेस बोलने में, स्पीच में भी होती है, वॉइस में। जब हम एक पर्टिकुलर टाइम पे अपनी पिच को हाई करते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पे हमारी पिच लो होती है। वॉइस जब आवाज, साउंड में हमें 3 चीज़ों का ध्यान रखना होता है। पिच का ध्यान रखना होता है, दूसरा जो है हमारे इंटोनेशन का ध्यान होता है, और एक स्ट्रेस, किस लेवल पे कितनी स्ट्रेस देनी है, किस बात पे कितनी स्ट्रेस देनी है। आपने पब्लिक स्पीकर्स देखे होंगे, वो कई बार बहुत तेज बोलते हैं, स्ट्रेस देते हैं पर्टिकुलर पॉइंट पे। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे स्ट्रेस देते हैं, उसका मतलब ये होता है कि भाई इस चीज़ को ध्यान से सुनिए। इनडायरेक्टली ये उनका इशारा होता है। तो इंटोनेशन एंड स्ट्रेस ये वॉइस से रिलेटेड है। अब ऑप्शन देखते हैं। बैरियर्स टू द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। बैरियर्स टू द इफेक्टिव कम्युनिकेशन ये ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मान लिया रिटन कम्युनिकेशन है, तो रिटन कम्युनिकेशन में तो इंटोनेशन और ये स्ट्रेस का मतलब ही नहीं होता, तो दिस ऑप्शन कैन नॉट बी। सेकंड ऑप्शन, स्पीकर्स इंटोनेशन। अब आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, सिंपली क्लियर ही दे दिया, स्पीकर्स इंटोनेशन।
थर्ड ऑप्शन था टेंडेंसी, फोर्थ था एलिमिनेशन, वो बेकार के ऑप्शन है, कुछ होगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्लियर कट आंसर दे रखा है। 9, टेंडेंसी टू प्रीजज बेस्ड ऑन बाइसेस एंड स्टीरियोटाइप इज, टेंडेंसी टू प्रीजज, उस टेंडेंसी को जो पहले से ही जज कर ले, वो बेस्ड होती है किसके ऊपर? बाइसेस। बाइसेस का मतलब पक्षपात, पक्षपात का मतलब टू मेक यूर एक जजमेंट जो है, एक आपने एक अपना माइंड सेट आपका पहले से ये कुछ है कि जैसे हमारा एक माइंड सेट है कि भाई जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान, इंडिया और पाकिस्तान का मैच होगा तो उसमें इंटरेस्टिंग होगा, वो एक थ्रिल होगी उसमें। ये एक हमारा बायसनेस हुई। ये मैंने दिया एक बेकार एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल, बायसनेस का मतलब ये होता है कि हम जब पूरी तरह से किसी के पक्ष में हों, हम पूरी, हमारे मन में एक धारणा हो, हमारे बिलीफ सिस्टम में अगर जो कोई चीज़ पहले से ही है, उसको हम कहते हैं बायसनेस। तो बायसनेस का मतलब अपना पक्ष किसी एक तरफ रखना, ये बायसनेस होता है। एंड स्टीरियोटाइप यू नो वेरी वेल। स्टीरियोटाइप क्या होता है? स्टीरियोटाइप का मतलब होता है जो ट्रेडिशनल चीजें हैं उनको, उन्हीं स्टाइल को रिपीट करना, दैट इज द स्टीरियोटाइप। अब पक्षपात और स्टीरियोटाइप, ये दो ट्रेट्स हुए, किस चीज के ट्रेट्स हुए? ये दो पर्सनैलिटी के ट्रेट्स हुए। और पर्सनैलिटी के जो ट्रेट्स हुए, तो पर्सनैलिटी के ट्रेट्स हुए, तो ये पर्सनैलिटी जो आदमी की होती है उसमें ये जो चीजें हैं, बायसनेस मतलब चॉइस, और स्टीरियोटाइप्स मतलब ट्रेडिशन के साथ रहना। ये कौन से, किस फैकल्टी हमारी बॉडी के किस सेंस ऑर्गन में होंगे ये सारी चीजें, कहाँ होंगी? दिमाग में होंगी। कहाँ होंगी? दिमाग में। किसके प्रति हम बायस्ड हैं, किसके अगेंस्ट में हैं। और जो स्टीरियोटाइप हमारे एटीट्यूड है, एटीट्यूड कहाँ होता है? दिमाग में होता है। तो दिमाग, इसका मतलब कैसा बैरियर हुआ? ये इंटरनल बैरियर टू कम्युनिकेशन, इंटरनल बैरियर टू कम्युनिकेशन। एक्सटर्नल बैरियर नहीं हो सकता। बायसनेस, जब हम बायसनेस दिखाते हैं तो वो एक्सटर्नल, हमारा एक्ट वो तो एक्सटर्नल होता है, लेकिन जो थिंकिंग है, थिंकिंग प्रोसेस इज इन अवर माइंड, सो दिस इज द इंटरनल बैरियर। एक्ट बाद में आता है, सोचते हम पहले हैं। तो पहले जब हम सोचते हैं तो सोचना कहाँ से होता है? दिमाग से। तो ये बैरियर है। जस्ट ए बैरियर टू कम्युनिकेशन नहीं, बोथ ए एंड बी नहीं, ए इज वेरी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, क्लैरिफिकेशन इज डन टू इंश्योर। क्लैरिफिकेशन किया जाता है किसी चीज का, वो किस चीज को इंश्योर करने के लिए किया जाता है? नंबर 1, दैट द मैसेज इज रिसीव्ड, कि मैसेज रिसीव हो गया है क्या, इसलिए क्लैरिफिकेशन किया जाता है। ठीक लगता है ना आंसर? ठीक नहीं है। क्यों? अभी बताता हूं। बी, दैट द मैसेज इज हर्ड, कि मैसेज सुन लिया गया है, ये भी ठीक नहीं है। हर्ड का मतलब हियरिंग का मतलब ये है कि भाई एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया। लिसनिंग और हियरिंग में डिफरेंस है। तो सुनना कोई इंश्योरेंस नहीं है, उसका कोई इंश्योर नहीं करता कि भाई मैसेज सही तरीके से रिसीव हुआ है। ठीक है ना। थर्ड ऑप्शन, दैट द मैसेज इज रिसीव्ड एज इंटेंडेड बाय द स्पीकर। बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, कि जो दैट द मैसेज इज रिसीव्ड, जो मैसेज रिसीव हुआ है, एज इंटेंडेड बाय द स्पीकर, कि जो स्पीकर कहना चाहता था उसकी इंटेंशन पूरी हो गई है क्या, ये इस बात की तसल्ली कर लेना, ये क्लैरिफिकेशन है। तो ऑप्शन इज सी। ऑप्शन 11, हाउ ओल्ड आर यू इज ए मेथड ऑफ क्लैरिफिकेशन बाय। अब देखिए, हाउ ओल्ड आर यू, आपकी उम्र कितनी है, इसका आंसर क्या होगा? 18 ईयर, 20 ईयर, यही बताएंगे ना आप उम्र की। एक या दो शब्द में बताएंगे, और एक या दो शब्द में जब आप अपनी एज बताएंगे तो आपका आंसर एक या दो शब्द का हो, तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस को हम क्या कहते हैं? जिनके आंसर बहुत कम शब्दों में दिए जाए उनको क्या कहते हैं? मेथड ऑफ क्लोज्ड क्वेश्चन, मेथड ऑफ क्लोज्ड क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? सी, यूजिंग क्लोज क्वेश्चन टेक्निक। क्वेश्चन टेक्निक 3 होती हैं, पता ही है आपको, क्लोज टेक्निक, ओपन टेक्निक और रिपीटिशन।
और प्रोबिंग, इस तरह से। नेक्स्ट, टू ओपन ए कन्वर्सेशन वन कैन यूज, आपको कन्वर्सेशन को ओपन करना है। किसी से आप कहीं जाते हैं और किसी से आपको बातचीत करनी है, तो बातचीत करने के लिए आप कोई ऐसा क्वेश्चन करेंगे जो बहुत बड़ा हो। बहुत बड़ा क्वेश्चन हुआ तो कोई आपसे बात भी नहीं करेगा। तो आपको बड़ी ट्रिक से काम करना है और उसकी अटेंशन को ड्रा करना है। तो अटेंशन को ड्रा करेंगे तो बहुत छोटा सा आंसर होना चाहिए, बहुत छोटा सा रिस्पॉन्स, कि अगर जो हमारी रिक्वायरमेंट होगी तो है ठीक, अदरवाइज गलत है। तो आंसर क्या हो गया? क्लोज क्वेश्चन। क्लोज क्वेश्चन में आंसर बहुत छोटे शब्दों में दिए जाते हैं, तो इसका आंसर हुआ क्लोज क्वेश्चन। अब ये इसमें रिकॉर्डिंग 20 मिनट होती है, ये रिकॉर्डिंग जो हो रही होगी वो शायद इसमें नहीं होगी, तो बाकी क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। सो आई होप दैट यू विल बी बेनिफिटेड बाय दिस। हैव अ गुड डे एंड रियली मिसिंग यू।